Jai Hind students. Now today we are continuing with the reported speech part 2, remaining part of the narration. We were doing interrogative sentence in the narration. Now I am continuing with that thing. In case of the request or advice, he said to customer, "Shall we dispatch these letters?" He asked the customer if they should dispatch those letters. Now here we can see it कि helping verb है shall या we can say auxiliary verb है, इसलिए हमने if use किया है और customers के लिए that is they use किया है, we की जगह हमने that लगाया है और past tense होगा shall का should हो गया, these का those हो गया. So the sentence will be he asked the customer if they should dispatch those letters. Request and advice are expressed in the indirect speech by asked, inquired, etc. Request or advice are normally reported by should. यदि कुछ request या advice आई है तो हम अधिकतर should word उसमें लिखते हैं. When the choice is required, we normally use whether in indirect speech. यदि choice रहता है तो हम अधिकतर whether ही use करते हैं. For example, shall I lock the room or keep it unlocked? Rajesh said. While changing into indirect, Rajesh asked. क्योंकि ये पूछा गया है shall I lock, ये question पूछा गया है, इसलिए Rajesh asked whether he should, shall will change into should, whether he should lock the room or leave it unlocked. Next one, when an offer is made, shall I bring you something to eat? She said to me. She offered to bring me something to eat. अब यहाँ पर आप दूसरी चीज़ देख रहे हैं, दैट इज़ यहाँ पर टू लगा है. जब भी ऑफ़र यूज़ होगा या कोई सजेशन होगा, देयर वी विल कंबाइन द सेंटेंस, दैट इज़ वी विल चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट विथ टू. जब भी सजेशन होगा या फिर ऑफ़र होगा तो हम वो सेंटेंस को इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तब टू यूज़ करेंगे. शी ऑफर्ड टू ब्रिंग मी समथिंग टू ईट. नेक्स्ट वन, when the suggestion is made, shall we meet again tomorrow? He said. He said to meet again the next day. Tomorrow next day change हुआ, suggestion है इसलिए हम to से join कर रहे हैं. He suggested to meet again the next day. Next rule, question beginning with will you, would you, could you. Such questions may express invitation, commands, request or may be an ordinary question. The reporting verb is used according to the tender theme of the statement. He said, will you be there on Monday? That is ordinary question है. ये ordinary question है, क्या आप Monday को आ रहे हैं? He asked if I would be there on Monday. Changing narration imperatives. Sentence expressing command, order, advice, request are usually called imperative sentence. जो सेंटेंस अधिकतर जो कमांड बताता है या ऑर्डर बताता है, एडवाइस या रिक्वेस्ट, ये चीज़ें बताता है, वो इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं. टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस आर मेक अ कमांड और रिक्वेस्ट एंड विथ अ फुल स्टॉप. Rule 1. Use conjunction to instead of that. Negative command, request, etc. are reported by no infinitive. I said to Hari, don't pluck the flowers. Now यहाँ पर don't pluck the flowers ये बता रहा है कि ये command है या order है. We can say order. So there will be said to की जगह हमें order लिखना है. I ordered Hari not to प्लग द फ्लावर्स. अब डोंट है दैट इज़ नेगेटिव है, इसलिए हम नॉट टू लिखेंगे. देन वी विल गो विद द सेंटेंस नॉट टू प्लग द फ्लावर्स. हमने इन्वर्टेड कॉमा हटाकर नॉट टू लिखा है.
Next one. In indirect speech, expression, command, request, advice are usually expressed by the verb of command, request, advice, object and infinitive. जब भी हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में तो जो रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड होता है वो हम कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस के साथ ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर इन्फिनेटिव लिखेंगे. द वर्ब लाइक एडवाइस, आस्क, इनवाइट, tell, urge, command, beg, order, recommended, etc. are generally used instead of say or said in such sentence. जब भी हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर रहे हैं तो said, say ये हटाकर हमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि वो एडवाइस है या इनवाइट है या टेल है या कमांड है, ये चीज़ें हमें देखनी होगी. फॉर एग्जाम्पल, ही सेड फॉलो माई इंस्ट्रक्शन. नाउ हियर फॉलो माई इंस्ट्रक्शन ये बता रहा है कि ये ऑर्डर दे रहे हैं. सो वी विल राइट ही ऑर्डर्ड मी टू फॉलो हिज इंस्ट्रक्शन. अब हम यहाँ दैट से ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, हम इसे इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू से कन्वर्ट करा जा रहा है. ही ऑर्डर्ड मी टू फॉलो हिज इंस्ट्रक्शन. रूल थर्ड. If the sentence contains the word like please, kindly, etc., these are not mentioned in the indirect sentence. यदि कोई सेंटेंस में kindly लिखा है या please लिखा है, इस टाइप के कोई वर्ड्स लिखे हैं तो हम इस वर्ड्स को इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट रिक्वेस्ट से स्टार्ट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, शी सेड टू रामू प्लीज़ ब्रिंग माई बुक. यहाँ पर प्लीज़ है मतलब वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमने इनडायरेक्ट में किया है शी रिक्वेस्टेड रामू टू ब्रिंग हर बुक. दैट इज इम्परेटिव सेंटेंस है इसलिए टू से ज्वाइन हुआ है. और जो रिपोर्टेड स्पीच है प्लीज़ ब्रिंग माई बुक, ये बता रहा है कि ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं. सो वी आर वाइल कन्वर्टिंग इनटू an indirect narration, we are writing she requested Ramu to bring her book. The conjunction to is used here. हमने ये conjunction use किया है while changing this. Changing narration, negative imperative. Negative commands, requests, etc. are usually reported by not infinitive. जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल देखा था कि जब भी हम चेंज करेंगे तो डोंट हुआ या डजेंट हुआ समथिंग लाइक दैट, तो वो पहले नॉट और फिर हमारा इन्फिनेटिव नॉट टू बी इस ढंग से लिखा जाएगा. और फॉरबिडेड कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर द प्रोहिबिशन, बट फॉरबिडन इज more common in the passive than in the active. The teacher said to hurry, don't write on the table. Now here हम देख रहे हैं कि reported speech में don't word है, means हमें indirect में जब हम change करेंगे तो not to से करना होगा. The teacher forbidden hurry to write on the table. यहाँ पर फॉरबिडेड वर्ड आ गया है, मीन्स ऑलरेडी नेगेटिव है, मतलब मना करना. तो ये वर्ड लिख लिया इसलिए हम नॉट नहीं लिख रहे हैं. द टीचर फॉरबिडेड हरी टू राइट ऑन द टेबल, ऑलरेडी मना. या फिर हम ये भी लिख सकते हैं दैट इज इंस्ट्रक्शन नॉट टू से, द टीचर इंस्ट्रक्टेड हरी नॉट टू राइट ऑन द टेबल. बोथ आर करेक्ट. यदि आपने फॉरबिडेड लगा है तो नॉट टू नहीं आएगा, और यदि इंस्ट्रक्टेड लिखा है तो वहाँ पर नॉट टू से हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है. द टीचर इंस्ट्रक्टेड हरी नॉट टू राइट ऑन द टेबल. Next rule, when use forbidden, never use no, as both have the negative meaning. जैसा कि मैंने बताया है forbidden का मतलब नहीं ही होता है, तो उसके साथ हम not नहीं use करते हैं. Verb advise, urge, beg, request, order, invite, command, ask, etc. Required object infinitive, that is they are required to be followed directly by the object. The person address without preposition. The person addresses often not mentioned in the direct speech. He said, get out. He told me to get out. यहाँ पर जब भी जैसे ये कमांड है कि get out, उसने कहा कि बाहर निकल जाओ. So we can change it into he told to get out. Verb ask. The verb ask can also be followed directly by infinitive of some specific verb, see, speak, to, talk to.
For example, he said, could I speak to Ram? He asked to speak to Ram. Now यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जस्ट हमने पूछा है कि क्या मैं राम से बात कर सकता हूँ. जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे तो हम लिखेंगे he asked to speak to Ram. Both ask and beg can alone be following by the passive infinitive. Please send me to a hilly area. He asked और he begged. किसी में भी हम लिख सकते हैं कि he asked भी हो सकता है, he begged भी हो सकता है. So here, while changing into indirect narration, we can say he asked us to send me to hilly areas. या तो ask लिख सकते हैं या beg लिख सकते हैं. Us to send him to a hilly areas, as we know the rules of the changing from direct to indirect speech. Direct, indirect, imperative use of do. Example, in the following sentences, do is used to make a request more emphatic, more polite or courteous. He said to me, do have a cup of coffee please. ये डू हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जो सबसे पोलाइट वे में बोला जाता है. एज पर क्वेश्चन, ही सेड टू मी, डू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी प्लीज. ही रिक्वेस्टेड मी टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी. जो ये क्वेश्चन दिया गया है उसको हमने चेंज किया है. इनडायरेक्ट में ही रिक्वेस्टेड मी टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इम्परेटिव टैग. क्वेश्चन नाउ यहाँ पर बताया गया है कि यदि क्वेश्चन टैग होते हैं तो उसको हम कैसे चेंज करते हैं. समटाइम्स टैग क्वेश्चंस आर अटैच्ड टू द इम्परेटिव टू मेक देम मोर एम्फेटिक. शी सेड टू रमेश, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर. वोंट यू. वोंट यू इज देयर, जो कि हम क्वेश्चन टैग बोलते हैं. अब इस टाइप का यदि क्वेश्चन है कि क्वेश्चन टैग लिखे हैं, देन वी विल कन्वर्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच लाइक शी आस्क्ड रमेश टू ब्रिंग हर अ ग्लास ऑफ वाटर. वोंट यू हटेगा, हमें डायरेक्ट सिर्फ लिखना है कि शी आस्क्ड रमेश टू ब्रिंग हर अ ग्लास ऑफ वाटर. Note, a question tag at the end of the imperative sentence is left out in the indirect narration. क्वेश्चन टैग यदि दिया है तो जब हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर रहे हैं फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, हमें उसे लीव करना है. फॉर एग्जाम्पल, शी सेड टू मी, डू यू लाइक कॉफ़ी डोंट यू. नाउ वी आर चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट में जब चेंज कर रहे हैं, शी आस्क्ड मी वेदर आई लाइक कॉफ़ी. यहाँ पर वेदर लगाया है और जो क्वेश्चन टैग दिया है डोंट यू, इसे हमें हटा दिया है. डायरेक्ट, इनडायरेक्ट इम्परेटिव्स विथ लेट. नाउ यहाँ पर लेट वर्ड से हमें कैसे चेंज करना है. सेंटेंस विथ लेट कैन बी यूज टू एक्सप्रेस सजेशन, ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड विश. ये लेट के साथ अधिकतर कभी सजेशन आ जाता है, कभी ऑर्डर, कभी रिक्वेस्ट और कभी विश. ये अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हमें यूज़ करना है. लेट्स और लेटस फॉर सजेशन. ही सेड, लेट्स लीव द बैग एट द होटल. ये एक सजेशन है, दैट इज़ कि चलो ये बैग को होटल में छोड़ देते हैं. सो वाइल चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट, ही सजेस्टेड लीविंग द बैग एट द होटल. यहाँ पर हमने लीविंग से करा है, लीविंग द बैग एट द होटल. नेक्स्ट वन, ही सजेस्टेड दैट दे शुड लीव द बैग एट द होटल. ये एक और टाइप हो सकता है कि उसने सजेस्ट किया है कि हमें बैग होटल में छोड़ देना चाहिए. सो ही सजेस्टेड दैट वी शुड लीव द बैग एट द होटल. नेगेटिव सेंटेंस, ही सेड, लेट्स नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट टिल वी नो द फैक्ट्स. इसे हम चेंज कर रहे हैं. ही सजेस्टेड नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट टिल दे नो द फैक्ट्स. ये या तो हम इस ढंग से करेंगे या फिर नेक्स्ट तरीका है, ही सजेस्टेड डूइंग नथिंग अबाउट इट टिल दे न्यू द फैक्ट. यहाँ पर हमने नथिंग लगाया है और फर्स्ट वाले में नॉट डूइंग से करा था. थर्ड एक और वे है, he suggested that they shouldn't do anything about it till they knew the fact. यहाँ पर नेक्स्ट वन shouldn't से इसे हमने चेंज किया है. दैट इज़ ये सेंटेंस हम 3 फॉर्म में चेंज कर सकते हैं एंड दैट ऑल 3 विल बी करेक्ट. नेक्स्ट वन, नोट, लेट नॉट कैन ऑल्सो बी रिपोर्टेड इन द इनडायरेक्ट स्पीच बाय द सेम फ्रेज सच एज अगेंस्ट, ऑब्जेक्टेड
opposed the idea. Let's purchase this TV, said Ramesh. Let's not ask Anita. Now यहाँ पर रमेश suggested purchasing the TV. यहाँ पर सजेस्ट हुआ है कि चलो हम ये टीवी खरीदते हैं, तो जब हम इनडायरेक्ट में लिख रहे हैं उसे तो हम लिखेंगे रमेश सजेस्टेड परचेजिंग द टीवी बट अनीता वॉज अगेंस्ट इट। जैसे कि इसमें डायरेक्ट स्पीच में लिखा है लेट्स नॉट, मीन्स वो मना कर रही है, सो हम इनडायरेक्ट में हम लिख रहे हैं बट अनीता वॉज अगेंस्ट इट। Next one. Sometimes let him, them is used to express the suggestion. In such a case, it is reported by suggest or say or should. He said, let them go to their advocates. He suggested, यहाँ पर suggestion हुआ है, he suggested them going to their advocate. Now here हमने go की जगह going लिखा है, then as it is written to their advocates. He said that they should go to their advocates. ये दूसरा फॉर्म भी हो सकता है। उसने कहा he said that they should लगाया, फिर verb first form and then as it is the sentences. Let him or them is also used to express the indifferent attitudes. Ramesh will complain, said Anita. Let him complain, said Tina. Tina expressed indifference. Tina said she didn't mind if he complained. Let there be construction used in order and advice. Let can be also used to express wish. The student said, let me take food. The student wished that he should take food. Now यहाँ पर wish हुआ है, जो इच्छा है, क्वेश्चन बता रहा है, that is direct voice बता रहा है। The student said, let me take food, कि मुझे खाना लेने दो। The student wished, उनकी इच्छा थी, that he should take food. Let for the request, in such cases conjunction to is used. The boy said to the teacher, let me go home now. यहाँ पर जो रिक्वेस्ट होती है उस केस में हम टू यूज़ करेंगे। द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर टू अलाउ हिम टू गो होम नाउ। यहाँ पर अलाउ वर्ड आया है क्योंकि उसकी इच्छा है कि मैं घर जाऊँ अब, तो दैट इज़ इनडायरेक्ट में चेंज हो रहा है। द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर टू अलाउ हिम टू गो होम देन। नाउ का देन। Change in a narration optative sentences. A sentence containing expression of good wishes, praise or someone or desire are called optative sentence. ये changes हैं, the sentence के changes हैं, that is narration changes है direct to indirect in optative sentence. Optative sentence वो होते हैं जहाँ पर good wishes, prayers या desires होती है। Rule 1. The reporting verb is changed according to the mood of the expression. Usually that conjunction is used. In such a case, the reported speech is changed into assertive. For example, she said to Sita, may God bless you with a daughter. She prayed that God bless you with a daughter. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये pray है, इसलिए हमने said to की जगह pray लिखा है। She prayed that God bless you with daughter. Expression to salutation. He said to the teacher, good morning. He wished the teacher good morning. यहाँ पर salutation है, that is good morning, इसलिए हम यहाँ पर wish लिख रहे हैं। Express with the farewell reporting verb bid bad is used. Like she said to me goodbye. There goodbye लिखा है, इसलिए हम bade लिखेंगे। She bade me goodbye means उसने wave किया कि goodbye उसने wish किया। Change the narration in exclamatory sentences. Sentence sudden expression of joy, sorrow, anger, applause, surprise, contempt are called the exclamatory sentence. Exclamatory sentence वो होते हैं जो sentence या joy बताता है, sorrow खुशी बताता है, दुख बताते हैं या anger बताते हैं या surprise बताते हैं, that is called the exclamatory sentence.
Rule 1. Reported verb exclaimed with joy, exclaimed with sorrow, exclaimed with surprise, exclaimed with anger, exclaimed with applauded, exclaimed with contempt, etc. is used according to the tender of a sentence. जो रिपोर्टिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं सेड टू की जगह या सेड या आस्क की जगह, यहाँ पर हमें या तो एक्सक्लेम विद जॉय लिखना है, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हमें देखना है कि ये सेंटेंस जॉय बता रहा है या दुख बता रहा है या कुछ सरप्राइज बता, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस वी हैव टू यूज़ इट. रूल 2. कंजक्शन दैट इज़ यूज्ड एज यूजुअल. Word such as alas, bravo, oh, wow, wow, hooray used in the direct speech are left out in indirect speech. ये जो words use होते हैं exclamatory sentence में like alas, bravo, oh, wow या hooray, ये सब हमें जब हम change करेंगे indirect speech में ये हमें लीव करना है, इसे छोड़ना है. The player said, hooray, we have won. The player exclaimed with joy. hooray word आया मतलब खुशी है, तो प्लेयर एकदम खुश है. There we can say the player exclaimed with joy that they had won. नाउ हमें सेंटेंस को पास्ट टेंस में करना है. वी की जगह हमने दे लिखा है क्योंकि प्लेयर्स के लिए है. हैव की जगह हमने हैड करा एंड द वर्ब एज इट इज़ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने लिखा है. नेक्स्ट वन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज ट्रांसफॉर्म इनटू असर्टिव. जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं वो असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो जाते हैं. दैट इज वी कैन से पॉजिटिव सेंटेंस ऑल्सो. एग्जाम्पल, वॉट अ ब्यूटिफुल गर्ल शी इज़. यदि रिपोर्टेड स्पीच में लिखा है सपोज ही सेड वॉट अ ब्यूटिफुल गर्ल शी इज़, तो इसे हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे. शी इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल, वो चेंज होगा ही एक्सक्लेम्ड दैट शी इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल. दैट इज़ हमें जो क्वेश्चन में है या जो सेंटेंस दिया है व्हाट अ ब्यूटिफुल गर्ल शी इज़, इसे हमने चेंज किया है असर्टिव में शी इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल. रूल 5. फॉर एनी विश लाइक इफ़ आई वर द बर्ड, इफ़ आई वर PM एक्सेट्रा, रिपोर्टिंग वर्ब विश इज़ यूज. यदि कोई भी विश होती है तो हम सैड की जगह विश यूज़ करते हैं, विश वर्ड यूज़ करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, शी सेड इफ़ आई वर अ बर्ड. ये एक विश है, एक इच्छा है, तो यहाँ पर हमने सेड की जगह विश लिखा. शी विश दैट शी वुड बी अ बर्ड. ये विश हुई और हमने पास्ट टेंस में सेंटेंस को चेंज किया. Rule 6. All other rules regarding changes of pronouns and change of sentence are also applied. और इसमें जितने भी rules, जो भी pronoun हम change कर रहे हैं जैसे he का him like this, ये सब rules इसमें भी लगेंगे exclamatory sentence में भी. Thank you everyone. I suppose everyone must have understood this narration. We will meet in another class. Thanks.